Okay, now a very good afternoon to one and all the students of final year mechanical engineering. So today we are covering the topic in continuation with yesterday's class. That I think yesterday we have learned the supply chain principles 4C. Yes, everybody knows the term of our yesterday's class. We have learned or understand about the 4C. Yes, Gaurav, Arvind, Ram Prasad, Rahul. Getting my voice? Yes, sir. Okay. So in continuation with that particular point, now I'm going to move to the next topic. Now just we'll take the little bit review of this 4C. So just remember this term 4C, supply chain management underlying principles. This will help us to reduce the overall cycle time and improve the responses as an outcome. Getting? Okay, Gaurav, Arvind, Yes, Ram Prasad, सभी मेंबर्स ध्यान से देखते चलिए, गोल मत होइए कोई भी, सभी लोग अपने स्क्रीन पर रहने की अगर कोशिश करेंगे तो आई थिंक इट विल बी मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इंटरेस्टिंग टू यू ऑल, है ना। आज सभी लोगों को कुछ पूछना है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इट इज इजी टू डिस्कस नाउ. So what was the 4C? You can take the a little bit review of yesterday's understanding. What compression says from the 4C? The first C is compression. Yes, Gaurav? Are you able to give any idea about Yes, our yesterday's term? The understanding of 4Cs? What do you understand on this particular 4C? So in short, you can just recall the yesterday's term. Are Yes, you sir. able to answer? Okay, बताइए जरा सा, Yes, sir. है ना, शॉर्ट में बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं. जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमने मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के बेसिस पर काउंट किए और हमें अपने टॉपिक में मिली है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे. सर, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है वो 4 प्रिंसिपल्स पे अंडरलाइन करता है, मतलब 4 प्रिंसिपल पे वर्क करता है. सैद्धांतिक तो हाँ सर, सैद्धांतिक. सर इसमें एक पहला होता है कंप्रेशन. कंप्रेशन में सर ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज का प्लानिंग करके चलते हैं. सर एग्जैक्ट, हाँ सर, कोई बात नहीं, बस लेट हाँ मी सर. हेल्प यू. तो सुन लीजिए, सभी लोग मिल करके सुन लीजिए. Okay, so the first principle is your compression. In this compression, the things is going to be taken as actually in 3 different categories as we have earlier discussed. Okay, so what are the 3 things? For any of the objective of our organization as well as enterprise, we are going to make the 3 different categorized goals: long-term goal, short-term goal, and medium-term goal. Right? On the basis of that, we are going to plan our complete structure of the work of the enterprise or working of our organization, any of the system through which we are going to get the response outcome as a benefit now. So planning, manufacturing, and supply, these 3 terms will help you that how the planning is going to be made, so that the compression says that the complete entire unit, or we can consider it as setup of the organization. In that particular case, each and everything should be in planning, so that we can utilize the supply chain management in a better way. So this was our yesterday's class understanding that अगर हमारे पास में सही पर्टिकुलर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अगर रेगुलेट करना है तो
हमारा मेन उद्देश्य क्या, हेल्प ऑफ कंप्रेशन। जितना भी हमारा लीडिंग टाइम हमारे पास आइडेंटिफाई होता है हमारी प्लान किए हुए स्ट्रक्चर में, जो पता चलता है कि हमारा टाइम रिस्पेक्टिव डिले हो रहा है किसी प्रोसेस में या किसी प्रोसीजर में या किसी डिमांड को फुलफिल करने में, तो हम उसको क्या कर सके, कंप्रेस कर सके, उसको हम मिनिमाइज कर सके, सो दैट आउटकम में हम लीड कर सके। राइट, ये हमारी एक प्रोजेक्शन होती है। हमारी चाहे मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो आपके लिए, या फिर हमने सप्लाई चेन का एंटरप्राइज यूनिट बनाया हुआ है, तो हमारे सप्लाई चेन में टू एंड फ्रो हमारी कनेक्टिविटी कितनी आसान हो सकती है। तो हमें उसे कंप्रेस करना जरूरी होता है। कंप्रेस करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी चीज को बिगाड़ रहे हैं, बल्कि हम आइडल टाइम को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। आइडल टाइम मीन जो स्थिर समय हमें मिल रहा है, जिसको हम कस्टमाइज करके रेगुलेट कर सकते हैं और उससे हम एक अपने ऑब्जेक्टिव का आउटकम गेन कर सकते हैं। सेकेंड टर्म कन्फर्मेंस है। कन्फर्मेंस में हमारे पास में तीन इंपॉर्टेंट टर्म है जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर सभी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रहे हैं। सभी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रहे हैं। आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिएगा या आपको ध्यान आ रहा हो कि सर इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हो रहा होगा, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू सेटिस्फाई योर पर्टिकुलर गिवन कंडीशन ऑफ द रिस्पेक्टिव फर्म। तो जैसे फोरकास्ट है, प्लान है, डिस्ट्रीब्यूशन है। हम कभी भी कोई अपने काम को अंजाम देने के लिए या हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जब वर्क करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारी फोरकास्टिंग जो है वो आने वाले समय के लिए पॉजिटिव मोड में बनी होनी चाहिए। हमारा परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए कि हम अगर आज के करंट स्ट्रेटेजी को सही तरीके से चेस कर पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग हमारी प्रेजेंट की सही है, सो दैट आवर फोरकास्टिंग इज बट ऑब्वियस इट इज गोइंग टू बी इन अ वेल मैनर। So the planning related to that comes in this conformance and the distribution. If the proper distribution of all aspects of your system means whether that is related to the finance, whether that is related to the administration, whether that is related to the any documentation part, whether that is related to any of the transportation of any substance or any things or any informations in terms of any kind of out of previous four terms. तो उनमें से हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान जो है दैट शुड बी प्रॉपर। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, हमारी श्योरिटी बना लेते हैं कि हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो रोल है वो हमारे चाहे मैन पावर से जुड़ रहा हो, चाहे मशीन पावर से जुड़ रहा हो, चाहे फिर हमारे फाइनेंस से जुड़ रहा हो, या किसी भी तरह से मिसलेनियस सर्विसेज एज ए सर्विस प्रोवाइडर हमें एज एन ऑब्जेक्टिव कवर अप करनी है, उनसे जुड़ा हुआ हो, तो हम सभी में एक्सेल करते हैं और एक्सेल करने के कारण हमारा जो रिजल्ट आउटकम विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव होता है वो हमें प्रॉपरली मिलता है ना। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? अंडरस्टैंड? हेलो? Then come to the next term, that is the cooperation. So cooperation will give you a functional. क्रॉस फंक्शनल मीन अगर हम मार्केट में हमारी एक कंपनी को लेकर के किसी एक नेम के साथ में आप लॉन्च किए हुए हैं, हमारी पर्टिकुलर कंपनी के रिस्पेक्टिव वर्क कल्चर को देखते हुए हमारे कॉम्पिटिटर्स भी हमें क्या करते हैं, या तो वो कॉपी कर रहे होंगे या हम उनकी कोई बेहतर अप्रोच या स्ट्रेटेजी को हम अपने साथ में काउंट करके आगे चल रहे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये इनसाइड द सिस्टम कि अगर कोई गैप हमारे पास में हमारे सिस्टम में कहीं से आता है, तो वो पर्टिकुलर पोर्शन हमारे लिए हर कंडीशन में पॉजिटिव बनना चाहिए। इन विच सेंस कि अगर कोई क्रॉस फंक्शनल पोर्शन हमारे आइडल टाइम को फुलफिल करने में हेल्प कर सकता है, तो हमें वो सपोर्ट लेना आना चाहिए हमारे कॉम्पिटिटर से या नेक्स्ट वेंडर सर्विसेज से। राइट, सपोज दैट कि हमारा एक लॉजिस्टिक यूनिट है सप्लाई चेन का, और हमारे पास में जो पर्टिकुलर फैसिलिटीज, ऑल द फैसिलिटीज विच यू ऑल आर ऑलरेडी हैविंग, any of the circumstance comes that your present lacking of any of the service of your particular unit, if it is going to be suffered, then we will take help from the cross functional things. Okay, so उससे क्या होगा कि हमारा जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है उसमें हमारा वेट करने का या उसको डिले करने में हमारा पर्टिकुलर लॉस नहीं होगा। अगर हम डिले करेंगे तो इफ टाइम इज गॉन, मनी इज गॉन। द important principle of life is that in terms of business, because time is proportional to the money, right? जितना समय हम बचाने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए जो है पैसा वो है बढ़ता चला जाएगा। गेटिंग मी? जितना ज्यादा समय को हम यूटिलाइज करेंगे, कहने का मतलब ये आइडल टाइम को अगर हमने फुलफिल करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली द प्रॉफिट विल बी गोइंग टू एनहांस, राइट?
So these are the things which you can understand the cooperation. Cooperation in any of the way. Single line condition ho, mixed line condition ho, cross line condition ho, cross functional condition ho. All these particular terminologies of the management will help you to understand that how we can fulfill the basic current requirement to fulfill the demand as well as accomplish the supply. Right? With the help of supply, we can fulfill the demand of end customers. Now, in the same way, the fourth principle, how all these particular previous three things going